Hi everyone, I am Sandhya Dimmer from Empowering, Inspiring, Rising. Today, I am going to dive deeper into the topic how you can learn any skill and master it. The science behind how our brain learns new skills. So let's talk about it. We are living in a technological world where we need to adopt new technological trends, upgrade ourselves, and it demands us to continuously upgrade our skills too. So let's first understand what is a skill. The ability to do something well, or you can also say that expertise. अगर कोई काम आप कर रहे हो बहुत ही अच्छे से तो वो आपकी skills है, आपकी expertise है वो काम में, right? So different people have a different skill set because we all come from different backgrounds, cultures, religions, and variations in our upbringings. Some people are good at sport, some people are good at studying, some people are good at art, some people are good at coding on the basis of their interest. But people have this misconception that some people are born with a natural skill set. But what I believe is people aren't born naturally good at particular skill set, but they have a special interest or passion for a particular skill set and they practice it a lot and it comes naturally from them. So for other people it's hard to believe that they are and they think they are born naturally good at particular skill set. So many of you have a question here. If someone is born with a good voice, then obviously they are naturally good at singing. But here I want to make you understand, if someone is born with a good voice, then it is an attribute of that person, not the person's skills itself. When they are good at singing, by practicing a lot. So make sure that you understand this difference. So यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि हमें नई स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए और why learning is super important. So we humans are born to grow, learn, expand and explore. From morning to till night, list out the activity that you do. Let's say for example, you wake up early in the morning at 5 a.m. and you perform your morning routine like brushing your teeth, doing your meditation, yoga, prayers, exercise, taking your bath, taking your breakfast, going to the school, colleges or maybe your job or personal business and doing your work, everyday commute, coming back to home, making your dinner and family time and so on. So you require a particular skill set to perform those activities. अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है तो आप वो टास्क नहीं कर सकते हो. सो एवरी सिंगल डे वी एक्सपीरियंस द डिफरेंट थिंग्स एंड इट डिमांड्स अस टू grow continuously. What is a great thing about learning? When you are eager to learn everything, then it will open up so many doors for you. You expand your limits. You become so creative. Learning a different skill set always challenges you and encourages you to do different things. You increase your confidence level. You adopt the growth mindset. And you become so flexible to do everything in your life because you have a multiple skill set. Here, I want to share my personal life experience of learning a different skill set. Throughout my life journey, I have experimented a lot with a different skill set. In the beginning, I have a special interest in fashion, hairstyling, crafting, and fitness. Later on, I learned English, communication skill, digital marketing, internet of things, IT, freelancing, writing, blogging. So these are a very few common lists that I have mentioned here. But why I'm sharing with you guys? Because learning a different skill set has taught me a very important lessons of my life, such as how to learn or adopt new things, how to implement it, how to adopt the growth mindset,
how to keep failing hard enough, and how to get up from my failures. And whatever skill set that I have learned, how to use that skill set in my day-to-day life. So learning a different skill set has really taught me very important lessons of my life. So यहाँ पे मैं आपको मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने मेरा YouTube चैनल चालू किया था तब मेरा कोई प्लान नहीं था YouTube पे चैनल बनाने का, राइट। तो मैं नॉर्मली जॉब करती थी और मेरा जो भी फ्री टाइम रहता था ट्रैवल का टाइम, उसमें मैं राइटिंग करती थी। तो तब मुझे एक ख़्याल आया था कि क्यों ना मैं मेरे राइटिंग को कुछ नया फॉर्म दे दूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था तब कि इफ़ यू आर एवर जज बाय पीपल देन दिस इज़ फॉर यू करके, वो आर्टिकल का नाम था। और मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बना दिया, वो जो मेरा राइटिंग का फॉर्म था ना उसमें मैंने वैसे रिप्रेजेंट कर दिया कि वीडियो थ्रू। तो मैंने मेरे दोस्तों को शेयर किया वो वीडियो और वो लोग को अच्छा लगा। तो वो लोग ने बोला कि अच्छा है, अप्रिशिएट भी किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को YouTube पे डाल दूँ। तो तब मैंने मेरा YouTube चैनल एक बनाया और उसका नाम मैंने रखा था एम्पावरिंग इंस्पायरिंग राइजिंग। तो उसके नाम के पीछे भी पूरी की पूरी स्टोरी है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी आपको। तो मैंने चैनल अपना क्रिएट किया और वहाँ जाके मैंने वो वीडियो डाल दी। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने मुझे पहले तो ये पूछा कि संध्या आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी है। तो तब मुझे पूरा खेल समझ में आया कि हो क्या रहा है। मैंने एक ही वीडियो डाला था यूट्यूब पे और सब लोग ने मुझे यही क्वेश्चन किया कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी। तो फिर मुझे तब समझ में आया कि यार मेरे इतने सालों की जो मेहनत थी इंग्लिश सीखने में, स्पेशली स्पीकिंग के लिए, तो तब मुझे ये जो मेरी स्किल्स में जो काम कर रही थी इतने सालों थे वो मुझे यहाँ पे काम आ गई। फिर उसके साथ साथ मुझे राइटिंग भी सीखनी थी, मुझे मेरी इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी करनी थी। तो मैंने क्या किया था कि मेरे जो थॉट्स है वो मैं लिखती थी, जो भी मेरा फ्री टाइम रहता था उसमें मैं थॉट्स लिखती थी, मेरे जो भी आर्टिकल्स पे मैं काम करती थी उस पे मैं राइटिंग करती थी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट राइटर, या आई नो दैट now I can write better, but in my past I am not a great writer. I just started with simple writing like codes and my thoughts. Later on I have tried to write on a different articles. So वैसे करते करते मैं मेरा राइटिंग इम्प्रूव करते गई। तब मुझे क्रिटिसिज्म भी बहुत मिले थे लोगों से, पर मैंने उस पर फोकस नहीं किया। मुझे पता था कि मैं राइटिंग क्यों करती हूँ। तो तब मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे मेरे राइटिंग जो मैं बुक में करती ना उसको मुझे नया फॉर्म देना है। तो मैंने ग्राफिक्स के जो टूल आते हैं ना वो सीख लिए और मेरे राइटिंग को कुछ नया फॉर्म दे दिया मैंने कि ताकि मैं मेरे राइटिंग को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, राइट। तो आपने देखे ही होंगे मेरे सोशल मीडिया पे जो भी मैंने पोस्ट डालती हूँ तो वो मैंने ग्राफिक्स टूल सीखे हैं और मैं अच्छे से मेरे राइटिंग को रिप्रेजेंट कर पाती हूँ इससे। तो ये जो मेरी स्किल थी ना तो मुझे यहाँ पे काम आ गई कि YouTube के जो मैं थंबनेल्स बनाती हूँ, जो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, तो उस पर मुझे ये मेरी राइटिंग स्किल काम आ गई। एडिटिंग स्किल्स जो मेरी थी वो भी मैं यहाँ पे काम आ गई। तब मुझे जाकर पूरा खेल समझ में आया कि यार स्किल सेट जो सीखते हैं हम उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। सो यहाँ पे आके मैंने क्या किया कि मैंने मेरा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और वहाँ जाके मैंने मेरी सारी जो स्किल्स है ना उसको मर्ज करके मैंने प्रोडक्ट बना दिया, राइट। सो यहाँ पे मैं स्टीव जॉब्स का एक कोट है वो मैं बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम बाय लुकिंग बैकवर्ड। सो यू विल हैव टू ट्रस्ट दैट somehow that dots will connect in the future, right? So ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, राइट। सो यू नो स्किल सेट जो आप जो भी सीखते हो ना वो बहुत ही काम की चीज़ है। प्लीज़ उसे नज़रअंदाज मत करो। जो भी आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही है, बस उसे सीखते जाओ। आपको पता फिर चलेगा एक दिन कि यार ये जो मैंने सारी चीज़ें सीखी थी उसका
एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स है, जैसे मुझे आज पता चल रहा है, राइट। अगर बहुत लोगों को ये होता है कि लाइक हम क्यों सीखे, हमारा जो डोमेन है हमें उसमें ही करना चाहिए, वही हम में एक्सपर्टीज़ हो, क्यों। लाइफ में ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हमें उसी तरह से चलना रहता है कि हाँ चलो ये चीज़ आई तो ये सीख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ये आया तो ये सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर एलन मस्क की बात करूँ मैं आपको, अगर वो सोचते, उनका फर्स्ट स्टार्टअप जो था Zip2 पे, राइट, अगर वो सोचते कि मुझे बस यही मेरा डोमेन है, मुझे उसमें ही रहना है, उसमें ही काम करना है, तो क्या हम आज स्पेस एक्स जो है, फिर सोलर एनर्जी है, टेस्ला है, वो चीज़ हो पाती? ऑब्वियसली नॉट। सो ऐसे थिंकिंग मत रखो कि यार मेरा ये डोमेन है, मुझे वहाँ तक ही सीमित रहना है। आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी जैसे ही लाइफ में जो भी चीज़ आती रहती है ना, उसको आप सीखो। ये बहुत ही एडवांटेज है। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि उसका एक्चुअल में कनेक्शंस क्या है, बट जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे ना खुद का, तब आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे ये जिसके जो भी सारी स्किल सेट आपने सीखी है ना, तो उसका जब कॉम्बिनेशन होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये क्या हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ करने लग जाते हैं कि यार हाँ मुझे भी ये चीज़ करनी है, बट ये हमारी मिस्टेक्स है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को इन्फ्लुएंस होके चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। बट वो बंदा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उनका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, उन लोग की लाइफ स्टोरी क्या है, उससे रिलेटेड वो लोग चीज़ कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं पता रहता है। अब हम बस इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी से स्किल्स सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि अगर मैं किसी से ये स्किल सीखना चाहती हूँ और चाहता हूँ, तो मैं मेरी लाइफ में उसको कैसे अच्छे से रिलेट कर पाऊँ, कहाँ जगह राइट प्लेस पे मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ ताकि उसका मुझे मैक्सिमम एडवांटेज और बेनिफिट्स हो। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस होकर ऐसे ही करने लग जाओगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म पर नहीं जा पाओगे। जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया था, तो मैंने किसी को इन्फ्लुएंस होके या देख करके मैंने नहीं चालू किया था, क्योंकि मेरा एक पर्पस था। मैंने जैसे ही बोला कि एक्सीडेंटली मैंने एक वीडियो मेरी राइटिंग का फॉर्म का डाला, और मैं वैसे जैसे जैसे करती गई ना, तब मुझे पूरा ये साइकिल जो है ना समझ में आया कि यार एक्चुअल में अब मुझे प्रोसेस समझ में आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। तो ये चीज़ ऐसे है कि जब हम अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी स्किल्स है ना वो सीखते चले जाते हैं ना, तो वो बहुत ही बेनिफिट है, राइट, उसमें। तो किसी को, मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि किसी को इन्फ्लुएंस होके मत सीखने लगो कि यार मुझे भी ये करना है। पहले देखो कि वो लोग क्यों कर रहे हैं। जब आप कोई स्किल सीखोगे उसके पीछे आपका कुछ मकसद होगा, आपको पता है कि ये स्किल्स मैं क्यों सीख रही हूँ, या तो मैं ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ ताकि उसका मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। तो ऐसे चीज़ सीखो, राइट। इन दिस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ अ स्किल and different people have a different skill set. Why do we need to learn new skills and why learning is super important? So in the next video I'm going to talk about the science behind how our brain learns new skills. Mechanics क्या है कि हमारा ब्रेन कैसे नई चीज़ें सीखता है, राइट। तो वो टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, राइट, and don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Why I'm telling you this to you guys, because your support and your contribution matters to my channel. It helps my channel to grow, so please don't forget to subscribe, right. And it will helps me to add more values to my video. So stay tuned and I will see you in the next video.